بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جتنے بھی صحابہ ہیں سب آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، کسی بھی صحابی کی اتباع کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اگر کسی نے کسی صحابی کے سامنے گستاخی کیا تو عاشق رسول کبھی برداشت نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو رسول والا ہے وہ رسول کے تمام صحابہ کو جنتی مانتا ہے۔ اہل بیت پاک اطہار ہم سنیوں کی جان ہے، اور میرے اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر کے 2 مصرے میں فیصلہ کر دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نظم ہے۔ اب آگے دوسرا کہیں گے نا ورنہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نظم ہے، اصحاب حضور نظم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ۔ تو سرکار اعظم فرماتے ہیں ہمارا بیڑا پار ہے اس لیے کہ آسمان رشد و ہدایت کے ہم ماننے والے ہیں اور اہل بیت پاک اطہار کی کشتی میں بیٹھنے والے ہیں۔ تو سنی وہی ہے جو تمام صحابیوں کو مانتا ہے، اور سنی وہی ہے جو تمام اہل بیت پاک اطہار کو مانتا ہے۔ وہ خارجی ہوگا، وہ رافضی ہوگا جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے، بس اتنا سمجھ لو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سے راضی ہے اس سے خدا راضی ہے اور اس سے ہم سب راضی ہیں۔ اور ایک مسئلے کی بات آپ کو بتا دوں، صحابی کا مقام کیا ہے؟ جن کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں، اے بچے تم لوگ خاموش بیٹھ، چپ چاپ بالکل آواز نہیں نکالنا، بکواس پیشاب کرنے کی تمیز نہیں، استنجا لینے کی تمیز نہیں، اور صحابہ کی شان میں گھٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب لوگ کان کھول کے یہ مسئلہ سن لو، غیر صحابہ میں کوئی بھی ہو، قیامت تک کا عبادت گزار ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، فرد ہو، کسی صحابی کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ میرے غوث اعظم سلطان الاولیاء ہے، کسی صحابی کے شان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر صحابی دیدار مصطفیٰ جیسی عبادت پر کرنے کا شرط پا چکا ہے، اور دیدار مصطفیٰ وہ عبادت ہے کہ غیر صحابی اس کی برابری کر نہیں سکتا۔ صحابہ کی شان میں بکواس کرتے ہو، تم اگر 1 لاکھ چندہ دے دو، اللہ کے نام پر 10 کروڑ خرچ کر دو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں میں سے کوئی صحابی اپنے چلو میں جو لے کر کے خیرات کر دے اور تم سونے کا پہاڑ خیرات کر دو، اس کے ثواب کو نہیں پا پاؤ۔ بے شک۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مولائی ہیں، مولا علی کی شان میں کہ چاہنے والے ہیں، تو مولا علی کو چاہنے والے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرو۔ آپ لوگوں کو میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، توجہ کے ساتھ اس کو یاد کر لے گا۔ تمام صحابہ میں سب سے بڑا طاقتور، سب سے بڑا پاورفل، سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ سب کی زبان میں ایک ہی نام آئے گا، جلدی بولو، علی۔ کون علی؟ فاتح خیبر ہے۔ کون علی؟ شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، شاہ مردہ، شیر یزدہ ہے۔ بولو، سب کی زبان میں آئے گا نا؟ حضرت مولا علی، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ لیکن سنو، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ طاقت والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جمال الدین آج بول رہا ہے، 1400 سال پہلے حضرت مولا علی نے کہا تھا۔ ارشاد فرمایا، سنو، سب سے بڑے طاقتور، سب سے بڑے مجاہد حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اور جمال الدین نے جو کہا اس کی دلیل جمال الدین سے لے لیجیے۔ مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مایہ ناز کتاب ہے، اور پوری دنیا میں اس کو لوگ جانتے ہیں۔ اس مدارج النبوہ میں جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کیے اور خانہ کعبہ کے ان معبودان باطل کو جال حق و مزاق الباطل من الباطل کان ذوقا فرماتے جاتے تھے، گراتے جاتے تھے۔ چھت پہ جو لٹکے ہوئے تھے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ
मेरे कंधे पे खड़े हो जाइए और ऊपर वाले मामूदाने बाती को गिरा दीजिए। मामूदाने बाती मैंने एक जरूरत के तहत कहा है, आप लोग समझ गए ना? जल्दी बोलो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली, नबूवत का बोझ तुम उठा नहीं पाओगे, नबूवत का भार तुम नहीं उठा पाओगे, तो मुझे अपने कंधे पर रखोगे कैसे? गौर से सुन रहे हो? नबूवत का बोझ तुम, जोर से बोलो, यानी मुझे तुम नहीं उठा सकते, ये ताकत है कि नहीं? किससे कहा? शाहिद मर्दा, शेरे यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार से कहा। अब आइए हिजरत की रात, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रवाले मुस्तफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्कतुल मुकर्रमा से गारे सौर की तरफ जा रहे हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दोनों जब साथ साथ चलेंगे तो कुफार मक्का के जासूस दोनों के कदम देखकर पता लगा लेंगे कि हम लोग गए कहाँ हैं। बात समझ आ रही है? अरे बोलो, दोनों के कदम देख के बता देंगे। आज की साइंस कितनी भी आगे हो, उस वक्त के जासूस सूखे पत्थर पर कदम रख दे कोई बता देते थे कि हाँ ये कदम इंसान का है और ये लेके जा रहा है, इधर गया है उधर गया है। इसलिए या रसूल अल्लाह, मेरे कंधे पे आप बैठ जाइए। वहां चंद सेकंड की बात थी, गौर से सुनना, चंद सेकंड की बात थी, और अर्ज किया कि मेरे कंधे पे सवार हो जाइए, मैं चलूंगा आपको कंधे पर रखकर, और सिर्फ चलना मिल्लत नगर करीम नगर की दूरी नहीं, 7 किलोमीटर सौर पहाड़ तक जाना था और 2.5 किलोमीटर पहाड़ी पे चढ़ना था। एक बार भी नबी कौने ने नहीं कहा कि अबू बकर बारे नबूवत तुम उठाओगे कैसे, बारे नबूवत को लेकर चलोगे कैसे, तेरे बारे नबूवत को तुम लेकर के चढ़ोगे कैसे। इसलिए कि मुस्तफा जान रहमत को मालूम था कि अबू बकर की साथ ही वो अकेली साथ है जो बारे नबूवत को उठा भी सकती है, लेकिन चढ़ भी सकती है। वो है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। सुभान अल्लाह, सुभान। एक हदीस तुमने बारहा सुनी होगी, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। और कोई अपने दिमाग में ये बात न लाएगा कि हजरत अली की शान को कम करना, कम करने का सवाल ये नहीं उठता है। सुन्नी अली की शान में गुस्ताखी करने के लिए सोच भी नहीं सकता है। हजरत अली के कदमों पर हमारी जैसी लाखों जाने कुर्बान, जितने भी उलमा सबकी जाने कुर्बान। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। एक सुन्नी मौलाना आमिर रज़ा भाई, सुन्नी मौलाना बोलने लगा कि जब इल्म के शहर मुस्तफा है, अली उसके दरवाजा है, तो अबू बकर को भी सर झुका के जाना पड़ेगा, उमर को भी सर झुका के जाने पड़ेगा। मैं कहा चुप, तुम क्या बकवास। बोले क्यों? जब हुजूर ने फरमा दिया दरवाजा है तो झुक के जाना पड़ेगा कि नहीं। मैंने कहा पूरी हदीस सुन। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहले तुम एक बात का जवाब दो, दरवाजा लगता कहाँ है? जल्दी बोलो, किसमें? कहाँ? और दीवार जमीन पे रखते हो? जल्दी बोलो, क्या ये दीवार जमीन क्या है? दीवार के लिए क्या जरूरी है? बुनियाद, बुनियाद, बुनियाद। बुनियाद पहले है, दीवार बाद में है। दीवार के बाद छत की जरूरत है, उसके बाद दरवाजे। अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर बुनियानुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद है। सुभान अल्लाह। वो उमर जिदारुहा, उमर उसकी दीवार है। वो उस्मान सक़फ़ुहा, उस्मान उसकी छत है। अली जो बाबू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अगरचे उलमाए अहादीस में से बहुत से मुहद्दिसीन इस हदीस को ज़ईफ कहते हैं, लेकिन दो चार अगर ज़ईफ कहते हैं तो सैकड़ों इस हदीस को सही कहते हैं। जिसको भी जरूरत होगी व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैं आपको दलील के साथ भेज दूंगा। तो अब ये समझ लीजिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये इल्म शहर मुस्तफ़ा की बुनियाद है, और दीवार हजरत उमर है। कुछ तो याद रखो,
اور چھت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروازہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ الکریم ہے۔ ایک چیز اور، الحسن والحسین سیدہ شباب علی الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، زور سے بولو، اور جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہو کر جائے گا، کوئی بڈھا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک بڑھیا آئی حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں جنتی ہوں کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا بڑھیا کو جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، بڑھیا کو جنت میں جانے کا سوال نہیں اٹھتا ہے۔ رونے لگی تو فرمایا بڑھیا نہیں جائے گی، جوان بن کے جائے گی۔ تو اب حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہو کر جائے گا۔ تو تمام جنتیوں کے سردار کون؟ آپ حسن حسین سمجھتے ہو نا؟ آج دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا۔ میں نے رافضیوں کو چیلنج کر کے کہا تھا کہ اگر کوئی غلط ثابت کر دے 5 لاکھ روپے کا کیش انعام جمال الدین دے گا، اور زندگی پر غلامی کرے گا، تقریر کرنا بند۔ تو بولے کہ پھر جنتیوں کے سردار 2 نہیں رہیں گے تو کتنے رہیں گے؟ سب کے اگر سردار نہیں ہوں گے تو اور بھی کوئی سردار ہے؟ میں نے کہا مجھ سے مت پوچھو، رسول پاک سے پوچھو۔ اٹھاؤ صحیح ستہ کی مشہور حدیث پاک، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نورانی مجمع میں جلوہ فرما ہے، رائٹ ہینڈ میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حاذان سیدہ کہول علی جنہ، اے علی یہ دونوں جو آ رہے ہیں یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حضرت ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ لا تخبرہما، تم مت بتانا، یہ خوشخبری میں سناؤں گا۔ اب تھوڑا سا تم کنفیوز ہو گئے، بتاؤں کیا؟ چہرہ پڑھنا آتا ہے نا، بتاؤں کیا کنفیوز ہو گئے؟ جنت میں سب جوان ہو کے جائیں گے تو یہ ہے نا جنتی بوڑھوں کے سردار کا مطلب کیا ہوا ہے نا؟ تو پہلے یہ سمجھو، جنتیوں کے سردار ہوں گے 4، حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار، شیخین کریمین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جنتی بوڑھوں کے سردار۔ ایک سیکنڈ میں آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں، جو لوگ بچپنے سے لے کے جوانی تک دنیا میں رہے اور انتقال کے وہ جنتی ہیں، جنت میں جوان ہو کر جائیں گے، ان کے سردار ہوں گے حسنین کریمین۔ اور جو لوگ ادھیڑ عمر بوڑھے ہونے تک زندگی پائے، دنیا سے جب جائیں گے بوڑھے ہو کر یا ادھیڑ عمر ہو کر، اور جب جنت میں جائیں گے تو جوان ہو کر جائیں گے، ان کے سردار ہوں گے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سمجھ گئے؟ کیا سمجھے؟ بچپنے سے جوانی تک دنیا میں جو رہے اور جنتی ہیں، جنت میں جوان ہو کر جائیں گے، ان کے سردار ہوں گے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور ادھیڑ عمر سے لے کے بوڑھے ہونے تک دنیا میں جو لوگ رہے دنیا سے جائیں گے، اور جب جنت میں جائیں گے جوان ہو کر ان کے سردار ہوں گے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کی شان میں تم کیا سمجھو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، میری امت کے ہر فرد پر یہ واجب ہے کہ ابو بکر سے محبت کرے، اس کا شکریہ ادا کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا کے بیٹے حضرت عقیل وہی ہیں جن کے لڑکے حضرت مسلم کوفہ گئے تھے۔ حضرت عقیل سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی بات ہو گئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہ گئے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے انہوں نے کچھ کہا نہیں، انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے۔ اتنے میں حضرت عقیل بن طالب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور مجھ سے ہی تلخ کلامی ہوئی، اتنا سننا تھا چہرے مصطفیٰ سرخ ہو گیا، جلال میں آ گئے اور ارشاد فرمایا میرے یار کو میرے لیے چھوڑ دو، تم کیا جانو مقام ابو بکر صدیق کیا ہے؟ ابو بکر جیسا کوئی نہ پیدا ہوا نبیوں کے بعد نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ اور سنو، تم سب کے دروازے پر تاریکی ہے، ابو بکر کے دروازے پر
की तरफ से नूर जगमग जगमग कर रहा है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, सहाबा किराम भी है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे आगे जा रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पीछे पीछे चल रहे थे। नजरे मुस्तफा पड़ गई, इरशाद फरमाया, ए अबू दरदा तू आगे चल रहा है, तेरी पीठ उस शख्स की तरफ जा रही है जिसके तरह नबियों के बाद सूरज ने पैदा होते हुए देखा ही नहीं है। फौरन हट जा, अबू बकर की पीठ होगी, तुम्हारा सीना होगा। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबके एहसानों का बदला चुका दिया, अबू बकर के एहसान का बदला चुकाया नहीं। तो जितने भी सहाबा हैं सब में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे बड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और ये नंबर वाइज मैंने अपनी तबीयत से नहीं किया है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हजरत मौला अली करमल्लाहु तवज्जुहुल करीम के साहबजादे हैं और उन्हीं के खानदान से हजरत गाज़ी पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा हजरत मौला अली से, अब्बा तमाम सहाबा में सबसे अफजल कौन? कहा अबू बकर सिद्दीक। कहा उसके बाद? कहा उमर फारूक आज़म। फिर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, फिर मैं चुप हो गया। मैं दिल में ये गुमान करने लगा कि अगर मैं पूछूंगा कि इसके बाद कौन अफजल है तो मेरे बाबा हजरत उस्मान का नाम लेंगे, इसलिए मैं चुप हो गया। फिर मैंने तय पूछा, आप? तो कहा मैं आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। ये खाकसारी का आपका जुमला था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे अफजल नबियों के बाद, और हर खुतबे में तो सुनते हो ना, अफजलुल बशर बादल अंबिया बिताक़ीक़। तो नबी के जितने सहाबा हैं सब जन्नती है। किसी की शान में अदना सी गुस्ताखी करोगे, ईमान से हाथ धो बैठोगे, ये तो सोचो है किसके साथी? दोनों आलम के मालिक मुख्तार के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे किसी साहबी को गाली मत बकना। उनके दरमियान में जो आपस में मुशाजात हुए हैं वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, तुमको बोलने का उसमें कोई हक नहीं। और तमाम सहाबे कराम आसमाने रुद्दो हिदायत के सितारे हैं, सबकी मोहब्बत अपने सीने से लगा के रखो। अहले बैते पाक अतहार की मोहब्बत को सीने में लगा के रखो। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिना। जो आले रसूल की मोहब्बत में दुनिया से जाएगा वो कामिल ईमान वाला बन के जाएगा। अला माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा। और जो आले रसूल की मोहब्बत में दुनिया से जाएगा वो तौबा किया हुआ जाएगा। अला माता अला हुब्बे आले मोहम्मद बशरू मलकुल मौत बिल जन्नत सुम्मा मुनकर व नकीर। जब मलकुल मौत रूह निकालने आते हैं आले रसूल की मोहब्बत करने वाले की, तो उसे रूह निकालने के साथ साथ जन्नत की बशारत देते हैं। और जब कब्र में मुनकर नकीर सवाल जवाब के लिए आते हैं तो वो भी जन्नत की बशारत देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस उनके लिए है जो लोग आले रसूल के शान में गुस्ताखी करते हैं। मैंने आका इरशाद फरमाते हैं, अला माता ला बुग़्ज़े आले मोहम्मद माता काफिरा। जो बुग़्ज़े आले रसूल में मरेगा वो दुनिया से जाएगा तो काफिर बन के जाएगा। एक हदीस से फरमाया, अबू लहब जहन्नमी यकीनी, सूरत तब्बत जता गवाह है कि बेटी ईमान लाकर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार खुरमा में हाजिर आई। हिजरत की मक्के मुकर्रमा से मदीना तैयबा की तरफ हुजूर की बारगाह में हाजिर आ गई। मदीना शरीफ के कुछ लोगों ने कहा कि ये तुम्हारी हिजरत काम नहीं आएगी, तुम जहन्नम की ईंधन की बेटी हो। रोती हुई हुजूर की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह, मदीने वालों से कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे कहा है कि तुम्हारी इज्जत काम नहीं आएगी, तुम्हारा ईमान काम नहीं आएगा, इसलिए कि तुम जहन्नम की ईंधन की बेटी हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलाल में आ गए, मस्जिद नबी में तमाम साहबे किराम को बुलवाया और कहा, क्या बात है कि मेरे खानदान पर लोग लाल ताल करते हैं, और सुनो, अगर मेरे खानदान वालों से कोई बुग़्ज़ व अदावत रखता है तो खाने काबा में इबादत कर रहा हो, मकाम इब्राहिम के पास इबादत कर रहा हो, मुस्तल्ज़म के पास इबादत कर रहा हो, बेरे ज़मज़म के पास इबादत कर रहा हो, और इबादत करते करते दुनिया से चला जाए तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं वो जन्नती नहीं जहन्नमी होगा।
इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अहले बैत पाक अतहार जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया अना तारिकुम फीकुम मुस्तक़िलैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह कुल्लुहुमा वन-नूर, मैं तुम्हारे दरमियान से अब जाने वाला हूँ लेकिन दो भारी भरकम चीजें छोड़े जा रहा हूँ। एक है अल्लाह की मुक़द्दस कुरान किताब कुरान, और जिसमें हिदायत और नूर है वह अहले बैती और मेरे अहले बैत है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अहले बैत पाक अतहार से हम मोहब्बत कितनी करते हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले जब नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं तो सहाबा की शान में गुस्ताखी कर दे तो क्या तज्जुब की बात है। अब ये आमिर रजा साहब कबीला ने एक शेर कहा था कि जब सुलह हुई हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत हजरत अमीर मुआविया के हाथ में दे दिया। अगर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फासिक व फाजिर होते तो मुस्तफा का शहजादा अहले बैत का वो ताजदार हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी अपना हाथ हजरत अमीर मुआविया के दस्ते पाक में नहीं देते, इसलिए कि मर्द हक बातिल से हरगिज़ खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सुभान अल्लाह। हुसैन अगर यजीद के मुकाबले में सर कटा सकते हैं झुका नहीं सकते तो हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई हजरत इमाम हुसैन बोलो सर झुका सकते थे। पता ये चला कि जिसकी बैअत इमाम हसन करते हैं वो हमारे सर का ताज है। हम हजरत मौला अली हजरत अमीर मुआविया की बराबरी का कायल नहीं है कि दोनों के मकाम बराबर है, लेकिन हम इस बात के कायल हैं कि हर सहाबी जन्नती है। और हजरत अमीर मुआविया जिनके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआविया किताब वल हिसाब, ए अल्लाह मुआविया को किताब और हिसाब का इल्म अता फरमा। अल्लाहुम्मा जअलहु हादिया व महदिया वहदी बिहिन नास, ए अल्लाह अमीर मुआविया को हादी बना महदी बना और लोगों के हिदायत वाला बना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में साले भी है, कातिबे खुतूत भी है, कातिबे वही भी है और मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के अमीर है। और जब वो कुरान पाक वही इलाही की किताबत करते थे उसके भी अमीन थे। इतने अजमतों के बाद भी कोई बकवास करता है, कहता हम अली की मोहब्बत में बोल रहे हैं। कहा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर तुम्हें बकवास करते हुए सुन ले तुम्हारे मुंह पर थूकना भी गवारा नहीं करेंगे, इसलिए कि जो हसन जिससे प्यार करते हैं हम भी उससे प्यार करेंगे। और हजरत अली एक शेर आपका इसके तरफ भी था कि हजरत अमीर मुआविया हजरत मौला अली के यार है, ये कंफर्म 110% है। इसलिए कोई भी मसला आता था तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तमाम सहाबा में से सैयद साहब इकराम यही कहते थे कि वो फकीह हैं और उन्हें ये हक है कि मसले को बताएं। हजरत मौला अली हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कभी भी कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुई। बस ये मसला था कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये दावा था कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों को तय किया जाए, सजा दिया जाए। और हालात ऐसे थे कि मसला बिगड़ सकता था, खामोशी अख्तियार किया था, बस इतनी सी बात थी, लेकिन लोगों ने इसे अफसाना बना दिया। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तमाम अंसार मुहाजिरीन ने मिल करके खलीफा अव्वल चुन लिया तो नजर दौड़ाई का अली कहाँ है, उन्हें बुलाया जाए। हजरत मौला अली जब आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया के दामाद भी हैं और साबिकीन अव्वलीन में से भी है, चचा के बेटे भी हैं। मुझे यकीन है इस्लाम को कमजोर नहीं होने देंगे, इस्लाम को मजबूत करने के लिए आप हमारी मदद करेंगे। हजरत मौला अली समझ गए। हजरत मौला अली ने अर्ज किया या रसूलल्लाह क़द्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मनिल लज़ी युअख़िरुक। जब मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आगे बढ़ाया, किसकी मजाल है तो आपको पीछे कर दे। अव्वल आप है, अव्वल इमाम आप है। 70 वक्त मस्जिद नबवी में नबी कौनैन के हयात ज़ाहिर
दायरी में इमामत करने वाले अगर आए तो अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हजरत अमीर मुआविया हो या हजरत अबू सुफियान हो, हजरत अम्र बिन आस हो, जितने भी सहाबी हो गए सब हमारे सर के ताज है, सब आसमानी रुज़्दो हिदायत के चमकते हुए तारे हैं। जिसकी भी पैरवी करो हिदायत पा जाओगे। कलकत्ता से तकरीर का प्रोग्राम आया, मैंने ले लिया। बोले लेकिन ऐसा है कि हम लोग मुआविया के मानने वाले नहीं हैं, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो मैंने कहा क्यों? बोले वो यजीद के अब्बा है। मैं कहा यजीद के अब्बा, इसका मतलब क्या है? बहरहाल उसने फोन रख दिया, उसने काफी जाने दिया। बताइए, बस ये समझ लिए जो भी बकवास करता हुआ नजर आए वो कट्टर सुन्नी हो ही नहीं सकता। जो हमारे नबी का महबूब हो तो हमारा महबूब होगा ही नहीं होगा। और सुनो, तमाम मुसलमानों के मामू भी है। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हुजूर की बीवी है और उनके भाई हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इस्लाम लाने से पहले कितना भी कुछ भी किए हो, जंग किए हो, इस्लाम के खिलाफ किए हो, कोई भी साहबी इस्लाम लाने के बाद पहले के तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देता है और सबसे जन्नत का वादा कर लेता है। लिहाजा आप हमेशा सहाबा की ताज़ीम अपने दिलों में रखें और हमेशा ये ऐलान करते रहें कि जो मुस्तफ़ा का है वो तमाम साहबियों का है। हम मुस्तफ़ा को भी मानते हैं, नबी के तमाम साहबा को मानते हैं और नबी कौनैन के तमाम अहले बैत पाक अतहार को मानते हैं, नबी के आल को भी मानते हैं। और इस महीने की 6 तारीख को हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उसे पाक भी हुआ है। वक्त की नज़ाकत देखते हुए उस मौजू को बस यहीं तक मैंने रोका। आमिर भाई, उस मौजू को यहीं तक रखा मैंने। अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का उनसे पाक भी 6 तारीख को हुआ है। जल्दी बोलो, इसलिए उनकी बारगाह में हाजिरी हो जाए। आपके रजब को बताया जाता है कि मौला अली की विलादत हुई, ये भी बताया जाता है खाने काबा में हुई। बारह में से बहुत इख्तलाफात है, समझ गए? हजरत मौला अली सब कुछ है, हमारे नबी के जो सच्चे जानिसाब है तो हम उनकी ताज़ीम तौक़ीर करते हैं। लेकिन चाहने वाले इतना बढ़ा देते, इतना बढ़ा देते हैं। अभी इस साल बंगाल गया था तो एक शिया तबीयत आदमी था, वो बोले हजरत अली ये तमाम नबियों के सरदार हैं। मैंने कहा क्यों? बोले हुजूर ने इरशाद नहीं फरमाया मन कुंतु मौलाओ अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। मैंने कहा कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये इरशाद फरमाया है, यहाँ मोहब्बत से मुराद है जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से भी मोहब्बत करे। वो सामने में कुछ बात हो गई थी, इसलिए हुजूर ने रबीउल अव्वल के मौके पर ये इरशाद फरमाया था। इसका मतलब नहीं कि सबके नबियों का सरदार मुस्तफा जान रहमत है तो हज़रत अली है। आपको पता नहीं हजरत अली खुदा भी है। उससे कहा जो कुछ जमीन में हो रहा है वो अली के दम कदम से हो रहा है। मैंने कहा ऐसा बकवास छोड़ो, बस ये कह दो कि यारे गारे मुस्तफा और हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, ये वो मुक़द्दस नबूवत कुदसिया है जिनके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेके इरशाद फरमाया अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह। और साद बिन वक़ास, हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ और हजरत ज़ैद बिन सईद और हजरत सईद बिन ज़ैद और हजरत अबू तलहा, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, ये तमाम सहाबा के जो जो मकाम थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके जिंदगी में जन्नत की बशारत दे करके उनका लक़ब हुआ अशरा मिस मतलब 10 मुबशरा बशारत किए हुए। लेकिन वो कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना के साथ तमाम सहाबी जन्नती हैं। अब जब सोचो किसी सहाबी के मकाम तक कोई वली गौस कुतुब हो ही नहीं सकता है तो उसकी बराबरी कोई कर सकता है? इन फूकने वाले जन्मी कुत्तों से पूछो तेरी क्या मजाल है नबी कौनैन के मुकद्दस सहाबा की शान में बकवास करने की? अगर उनके मकाम को देखना है अल्लाह का कलाम देखो, जिनके शान में कुरान इरशाद फरमा रहा हो उसके शान में तुम बकवास करोगे तो ईमान तुम्हारा सलामत नहीं रहेगा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम मुईनुद्दीन, आपके वालिद के नाम गयासुद्दीन,
संजर में आपकी पैदाइश हुई और आपके उस अंगूर के बाग में एक अल्लाह का वली दीवाना मस्ताना फरजाना आया और कहा मुझे कुछ खिलाने के लिए कुछ दो। अंगूर का खोशा लाए, खाया, खाने के बाद खल्ली निकाला, दिया, कहा इसको आप चबा लीजिए, आपने मुझे खिलाया, मैं आपको खिला रहा हूँ। खिलाते ही ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला का दिलो दिमाग बिल्कुल चेंज हो गया। तमाम बागात और पंचक्की सबको राय खुदा में सदका करने के बाद वहाँ से निकल गए। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में पहुंचे और आपने 20 साल पीर मुर्शिद की खिदमत किया। पीर मुर्शिद की ज़बान से मतलब निकला, ये हमारे अब्बा हुजूर बदर मिल्लत अलैहिर्रहमान ने मुझसे इरशाद फरमाया था के दरमियान में। पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, कल मेरी मस्जिद में खिदमत वक्त जो भी आएगा जन्नती होगा, लेकिन अगर किसी को किसी ने बता दिया तो वो जहन्नमी हो जाएगा। जब फजर की नमाज के बाद एक जमे सफीद लगा हुआ तो कह ही चुके थे जो भी आएगा जन्नती होगा। आपने अपने इरशाद फरमाया से ये बताओ किसी ने जरूर और जिसने बताया वो डरा नहीं, वो जन्नत में आएगा। मैंने ये भी तो कहा था। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज खड़े हो गए और हुजूर मैंने बताया। तुमने मोइनुद्दीन डरे नहीं? कहा मैंने सोचा कि अगर मोइनुद्दीन के अकेले जहन्नम में जाने से हजारों जन्नती हो सकते हैं तो मोइनुद्दीन जहन्नम में जाने के लिए तैयार। खादगाम उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला ने सीने से लगा लिया। कहा मेरे बेटे तुम जहन्नम में क्यों आओगे? तुम्हारे सदके में लाखों जन्नती होंगे। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला का ये पाबंद हकाए रसूल जो आपको कहा जाता है कि वो मुर्शिद के साथ 20 साल जो रहे, तो जब बारगाह मुस्तफा में पहुंचे तो कब्र अनवर पर आवाज आई, मोइनुद्दीन हमने तुमको हिंदुस्तान की विलायत अता कर दिया। अजमेर जाना है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जानते ही नहीं थे अजमेर कहाँ है। नबी कौनैन ने पूरा पता बता दिया और जब आए इस्लाम की शमा ऐसी रोशन किया कि लाखों गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ना नसीब हुआ ना। ये वाक़या सब आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं मुख्तसर कहते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। किया कि नहीं किया? लाखों गैर मुस्लिमों को ईमान की दौलत मिली कि नहीं मिली? अब वो कहते हैं अल्लाह के वली से क्या होता है? अल्लाह का वली जहाँ कदम रखते वो जगह अल्लाह की निशानी बन जाती है, और जहाँ अल्लाह का वली आराम कर रहा हो यकीनन बदरजे औला वो जगह अल्लाह की निशानी है। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 158। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानी है। तो जब अल्लाह की निशानी है तो ताज़ीम करोगे कि नहीं? जल्दी बोलो, करोगे ना? तो वहां भी तो बंदी का कलेजा फटेगा ना कि ये कंकर पत्थर की ताज़ीम करता है। लेकिन सरों मिल्लत लगावे आने वालों, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है पारा नंबर 17 सूरह हज आयत नंबर 35, व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, अल्लाह के निशानियों की ताज़ीम वही करता है जिसके सीने में सुभान अल्लाह, जिसका सीना इश्क़ रसूल का मदीना वही ताज़ीम करता है। सुनियो, जब अल्लाह के वली कदम रख दे वो जगह अल्लाह की निशानी है। तो जहाँ अल्लाह का वली जलवा फरमा हो जगह अल्लाह की निशानी होगी कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा बोलने लगे अजमेर शरीफ कैसे हो गया? वहाँ सब कुछ है, हर फिरते वाले हर मजहब वाले हैं। मैंने कहा मेरे गरीब नवाज के कदम रखने से पूरा अजमेर शरीफ बन गया और ख्वाजा के कदम की बरकत से लाखों गैर मुस्लिमों को ईमान की दौलत हासिल हो गई। और जब हिंदुस्तान का लॉर्ड कैसेन वायसराय हिंदुस्तान यहाँ से लंदन वापस गया, लोगों ने पूछा क्या क्या देखे? कहा अभी तक तो जमीन पे हुकूमत करते हुए मैंने देखा था, लेकिन कब्र के अंदर से हुकूमत करने वाले को आज देखा हूँ। वो कब्र के अंदर है, हुकूमत आज भी उनकी चल रही है। जब पाबंदी लगाई गई प्यासा मारा जाए तब यहाँ से ये भागेंगे। वहाबियों देवबंदियों से बोलो जो कहते हैं वली हमारी तरह मजबूर है, इनके पावर का वो इनकार करते हैं। अल्लाह की दी हुई ताकत और कुव्वत से अल्लाह का वली जो चाहे कर सकता है। एक हदीस से कुदसी समाअत फरमाए
یہ حدیث قدسی بخاری شریف میں بھی ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ چلتا ہے پاؤں ہوتا ہوں، دیکھتا ہے آنکھ ہوتا ہوں، سنتا ہے کان ہوتا ہوں، پکڑتا ہے ہاتھ ہوتا ہوں. تو اب پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ تمام اعضائے انسانی سے پاک ہے، کلام کرتا ہے، زبان سے پاک ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، آنکھ سے پاک ہے، سب کی بات سنتا ہے، کان سے پاک ہے، ہر جگہ ہے، جگہ سے پاک ہے. تو علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت شامل حال ہوتی ہے. اب ولی کے دیکھنے میں آبجیکشن مت کرنا، نظر ولی کی ہے، قدرت خدا کی ہے. اگر میرا غریب نواز ایک سیکنڈ میں اجمیر سے چل کر ملت نگر والوں کی مدد کر کے چلے گئے تو اب خواجہ کے اس آنے جانے پر اعتراض مت کرنا، اس لیے کہ قدم غریب نواز کا ہے، پاور خدا کا ہے. کہتے ہیں کوئی پاور نہیں ہماری طرف، جو تمہاری طرف مجبور ہوگا وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا، جو اللہ کا ولی ہوگا جو کہتے وہ ہو جائے گا. پانی پہ پابندی لگائی گئی تو ایک خادم سے ارشاد فرمایا لے کے جاؤ پیالہ اللہ ساگر سے کہہ دینا کہ غریب نواز نے بلایا ہے. پورا پانی سمٹ کر کے پیالہ. تو ایک ایم ایس سی کا اسٹوڈنٹ بولنے لگا مولانا پاسبل یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کئی کلومیٹر اسٹوار کا پانی پیالے میں کیسے آ سکتا ہے. میں نے کہا میموری جانتا ہے 2 GB کی میموری میں سینکڑوں گانے آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے ہیں. اور 2 GB کے بعد 3 GB میں 3 GB میموری ہے، پیدا ہی نہیں ہوئی ہے پوری دنیا میں. 3 GB ہے ہی نہیں. 2 کے بعد 4 کے بعد 8 کے بعد 16، اس کے بعد 32، اس کے بعد 64، اس کے بعد 128، اس کے بعد 500، 256، اس کے بعد وہاں بھی ہے 1 TB میموری لے لو، لاکھوں گھنٹے کی تقریر آ سکتی ہے. بے شک جلدی بولو. میں نے کہا بیسک اسٹوڈنٹ سٹور اگر سائنس کی طاقت کی بنیاد پر ہزاروں گھنٹے کی تقریر ایک دوسری میموری میں آ سکتی ہے تو میرے خواجہ کی کارنوں سے اللہ ساگر پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا او آئی سی میں سمجھ گیا جب ایک دوسری میموری میں آ سکتا ہے یہ سب تو خواجہ کی کرامت سے اللہ ساگر بھی آ سکتا ہے. لیکن ایک کنفیوژن ہے میرے پاس. میں نے کہا کیا؟ بولے جب پانی اللہ ساگر کا پیالے میں آ گیا تو وہ ریت اور بالو ہی تو رہے گا. جب ایک پیالہ پانی اس میں ڈالو گے تو سوکھ لے گا. پھر یہ اللہ ساگر باہر کیسے لہریں کیسے لینے لگا. میں نے کہا تو پڑھنے میں ویک ہے، کمزور ہے. پوچھا کیوں؟ میں نے کہا یہ ملت نگر کا کریم نگر کا بچہ جانتا ہے. بچے ریڈی ہو جاؤ، آدھا میں بولوں گا آدھا جواب تم لوگ. جتنا موبائل کے میموری میں پھالا جا سکتا ہے اتنا موبائل کی میموری سے جلدی بولو، اتنا موبائل کی میموری سے کنفرم ہے نا. جتنا بھرا جا سکتا ہے اتنا میرا غریب نواز اگر اللہ ساگر کو پیالے میں لانے کا پاور رکھتا ہے تو ایک پیالے سے اللہ ساگر کو باہر نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو ولیوں کی شان تو یہ ہے، پہلے ایک مسئلہ سن لو. نبی کا معجزہ ولی کی کرامت ہوتی ہے. نبی کا معجزہ ولی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49. بنی اسرائیلیوں سے ارشاد فرمایا انی یخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، اس کے اندر پھونک مارتا ہوں تو خدا کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے. میرے خواجہ غریب نواز ایک گھر پہ گئے، ایک بڑھیا تھی، پیتل کی گائے تھی. آپ نے کہا مائی ذرا سا دودھ ملے گا؟ تو کہا کہ ہمارے پاس گائے بھینس بکری نہیں ہے، دودھ آپ کو کہاں سے لا کے دوں؟ اگر رہتا تو ضرور دے دیتی. فرمایا یہ گائے ہے نا، کہا یہ دودھ نہیں دیتی ہے.
कहा मैं लेके आओ, गए, पढ़ के फूका, चार आ गई, दूध से उसके घर का बर्तन सबका सब भर गया। उसके कबीले वालों ने देखा तो सब कलमा पढ़े और मुशर्रफ इस्लाम हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुख्तसर में बताया, आप समझ गए। एक साथ बोलने लगे, पीतल की गाय में जान कैसे आ सकती है? मैंने कहा जब परिंदे की मूरत में फूंक मारने के बुनियाद पे जान आ सकती है तो गरीब नवाज की ये करामत है, अल्लाह की दी हुई ताकत से इसके अंदर भी जान आ सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे बड़ी करामत ये है कि लाखों लोग मुशर्रफ में इस्लाम हुए। उसके बाद करामत ये है कि हमेशा कोई भी गया, फकीर गया, अमीर बन के आ गया, मुसीबत ज़दा गया, मुसीबत उसकी दूर हो गई, ये औलाद गया तो साहिब औलाद हो गया। एक बदअकीदा बोलने लगा, मौलाना बेटी बेटा देने वाला सिर्फ खुदा है और कोई नहीं। ये बेवकूफ लोग कहते हैं खाना बेटा दो, गौस पाक बेटा दे दीजिए। मैंने कहा देता खुदा है, वसीला गरीब नवाज है। बोले ये कैसे होगा? मैंने कहा समझ में बात नहीं आती, उठाओ कुरान मजीद का पारा नंबर 16 सूरह मरियम आयत नंबर 19। हज़रत मरियम उज़रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ईसा मिस्कार की वादा गुस्ल करने के लिए अपने घर के पूर्वी तरफ गई। गुस्ल करना था ना, दरवाजा सब पैक कर दिया। अचानक देखा ये खूबसूरत मर्द नजर के सामने आके खड़ा हो। इरशाद फरमाया हज़रत मरियम उज़रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, किसी भी अजनबी औरत लड़की के पास खड़ा होना ये बड़ी मायूब बात है, और मैं इस वक्त गुस्ल करने जा रही हूँ, ये तो और बड़ी मायूब बात है। तुम यहाँ कैसे आ गए? अगर खौफ खुदा तेरे सीने में है तो फौरन चला जा। आने वाले ने कहा क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियहब लकी गुलामन ज़किय्या। आने वाले ने कहा मरियम उज़रा घबरा मत, मैं कोई इंसान नहीं, मैं तेरे रब का भेजा हुआ फरिश्ता जिब्रील हूँ, और आया इसलिए हूँ कि दूं मैं तुझे एक सुथरा बेटा। क्या दूं? कौन देगा? जिब्रील साहब क्या बोलते हैं? मैं दूं। अरे बेटा देने वाला खुदा है ना, जल्दी बोलो। तो बोले मौलाना अल्लाह देता है, जिब्रील वसीला है। मैंने कहा अगर वो बात समझ गया तो ये भी समझ जा कि गरीब नवाज वसीला है, बेटा खुदा देता है। बेशक बेशक। जो भी गया बिगड़ी बन के आ गया। लोग कहते हैं गरीब नवाज भी है, बादशाह नवाज भी है, अमीर नवाज भी है। जो मुसीबत वाला गया उसकी मुसीबत को दूर करने वाले मेरे गरीब नवाज है, इसलिए कि अल्लाह के वली की जुबान से जो निकलता है वो हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, इसी महीने की 27 तारीख को बस खाली तबरुकर आज का दूर है ना, नहीं तुम जबरदस्ती तो चल लगा रहे। हर चीज का एक वक्त होता है ना, वक्त खुशगवार रहा तो इंशाअल्लाह आधा घंटा नहीं 3 घंटा बोलूंगा इंशाअल्लाह। इसी महीने की 26 तारीख का दिन गुजर का 27वीं शब है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने दरबार में 70,000 फरिश्तों को जिब्रील अमीन के सरदारी में भेजा और महबूब को बुलवाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मौजज़ात में सबसे अजीम शान मौजज़ा है रब का दीदार। यूं समझ लीजिए कि अल्लाह ताला को किसी ने देखा ही नहीं, न किसी फरिश्तों ने देखा और न किसी नबी ने देखा। अगर अल्लाह को देखा है तो सिर्फ मुस्तफा ने देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मक्कतुल मुकर्रमा से बुराक सवारी पर सवार हुए और वहाँ से बैतुल मुक़द्दस गए। बैतुल मुक़द्दस में तमाम नबियों की इमामत फरमाई। फिर वहाँ से पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान, फिर सिदरा, अर्श आज़म, जन्नत व दोज़ख की सैर, फिर लामका, रब के दरबार में पहुँचे। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की थी, रब्बी अरनी अंजुर इलैक, परवरदिगार आलम मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मुझे अपना जलवा दिखा दे। क़ाल लन तरानी, कभी नहीं देख सकते। वलाकिन इंजुर इलल जबली फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ़ तरानी। अरे मूसा, अगर तुम ये समझते हो कि खुदा का दीदार करने की ताकत तुम्हारे आँख में है तो पहाड़ पर तजल्ली को डालूंगा, खाली नजर जमा के रख दो। पहाड़ अगर सही सलामत रहा, तुम्हारी आँख सही सलामत रही, फसौफ़ तरानी, करीब तुम देखोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा सईक़ा। जब अल्लाह ताला ने
अपने तजल्ली को चमकाया तो पहाड़ रेजे रेजे हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पे आ गए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना किया था तो क्या कहा अल्लाह ताला ने, लन तरानी कभी नहीं देख सकते। और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे हैं तो आला हज़रत का एक शेर सुन लीजिए। आवाज तो शेर सुनाने वाली नहीं है, लेकिन आला हज़रत का शेर समझिए। जब जिब्रील सिदरा से एक बाल के बराबर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए तो हुजूर ने ये नहीं कहा जिब्रील मैं अकेले कैसे जाऊंगा। जिब्रील सिदरा पर रुक गए, दुनिया वालों को यह अकीदा दे दिया जिब्रील का मकाम जहां खत्म होता है मुस्तफा का मकाम वहीं से शुरू होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए। जो लामका में रहा हो पहले अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु क़ायातिन मिन नूरी व ना मिन नूरिल्लाह, उसके बारे में क्या टेंशन। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम नूर से गुजर रहे थे तो गैब से आवाज आ रही थी। आला हज़रत की ज़ुबानी आप समाता है, सुभान अल्लाह। ए मोहम्मद करीब हो अहमद करीब आसन बने मुमज्जद, ए मोहम्मद करीब हो अहमद करीब आसन बने मुमज्जद। आला हज़रत कहते हैं निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को सेवाए बेनियाज़ी, तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को सेवाए बेनियाज़ी। कहीं तो वो जोश लंतरानी कहीं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान लंतरानी कहीं तकाज़े विसाल के थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आगे बढ़ रहे हैं, आवाज आती है जब लामका पहुंचे, रब के दरबार में पहुंचे, सुम्मा तना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन अव अदना। तो वो जलवा रब का जलवा करीब हुआ, नजदीक हुआ, और इतना नजदीक दो कमालियां उससे कम। तो दना फेल है, फतदल्ला फेल है, फकाना फेल है। फेल का मतलब काम करने वाले को फाइल बोलते हैं, फेल को वर्ब बोलते हैं और फाइल को सब्जेक्ट और मफूल को ऑब्जेक्ट। दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन अव अदना। तो अब बाद लोगों ने कहा दना जिब्रील फतदल्ला जिब्रील, जिब्रील करीब हुए, फतदल्ला जिब्रील, जिब्रील नजदीक हुए। ये कहां साबित हुआ? और ये इख्तिलाफ सहाबा में दर्ज है। और हमारे सुन्नत व जमात का अकीदा है कि दना अल्लाह फतदल्ला अल्लाह फकाना क़ाब क़ौसैन अल्लाह। अब आवाम सोचे ये मौलाना बोलता है दना जिब्रील फतदल्ला जिब्रील, और ये मौलाना बोलता है दना अल्लाह फतदल्ला अल्लाह। है ना, समझ गए? जल्दी बोलो। यानी करीब कौन हुआ इसका जिक्र सूरह अन-नजम में नहीं है, वो फाइल महज़ूफ है। अब हमारा अकीदा है अल्लाह को देखा, अल्लाह करीब हुआ, अल्लाह नजदीक हुआ। तो अब दलील एमसीक्यू में फैसला किससे कराओ? उलमाए कराम से कराओ। आप तो यहाँ को उलमा को देख वैसे दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह सबको सलामत रखे, तमाम आप आते हदीस हवाले से सबको महफूज रखे। तो दलील इनसे दिलवाओ तो सब लोग मान जाएंगे। क्या बोलता है? वाबी जो बंदी मान जाएगा, कभी वाला मान जाएगा? जल्दी बोलो। तो अब दलील हम रसूल पाक से दिलवा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत जो कह दे वो हक है। और ये हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। रावी हदीस हजरत अनस बिन मालिक है। यहाँ कुरान पाक क्या जिक्र है याद रखिए, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन अव अदना। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं व दनल जब्बारु रब्बुल इज्जति फतदल्ला हत्ता काना मिनहु क़ाब क़ौसैन अव अदना। अल्लाह रब्बुल इज्जत करीब हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत नजदीक हुआ, और इतना नजदीक हुआ कि दो कमान या उससे कम की दूरी रह गई। अब कंफर्म हो गया? जल्दी बोलो, कौन करीब हुआ? बोलो अल्लाह। वदल्लल जब्बारु रब्बुल इज्जति फतदल्ला, जब्बार रब्बुल इज्जत करीब हुआ, फतदल्ला वही नजदीक हुआ, हत्ता काना मिनहु क़ाब क़ौसैन अव अदना, यहाँ तक कि दो कमान या उससे कम की दूरी रह गई। तो अब रब का दीदार महबूब ने ऐसे किया, अगर ये लाइट 1000 वाट का बल्ब लगा दिया जाए तो देख पाओगे? क्यों? हमारे आंख में पावर नहीं इससे देख सको। तो अब आका सल्लल्लाहु मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के जलवे की झलक देखा था तो हज़रत मूसा सईका बेहोश होकर गिर गए।
اور محبوب جب دو کمان کی نزدیکی سے رب کا دیدار کر رہے ہیں، کب تک کیے، کتنے سال کیے، کوئی خبر نہیں. تو اب محبوب کی آنکھ میں چھپکی آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، محبوب کی آنکھ میں چھپکی تک نہیں آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے جبریل کو دیکھا، لوگے کا بے وقوف، جبریل کو دیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیوں کیا؟ جب جبریل در مصطفیٰ پہ 24,000 بار خاتم بن کے تشریف لائے. جبریل کے دیکھنے کے لیے اتنا اعتبار. براق 70,000 فرشتے، اور بڑا اگر چھوٹے کو دیکھے تو بڑے کی معراج نہیں ہے، چھوٹا بڑے کو دیکھے تو اس کی معراج ہو سکتی ہے. جبریل مصطفیٰ کو دیکھے، جبریل کی معراج ہے، اور مصطفیٰ جبریل کو دیکھے، مصطفیٰ کی معراج نہیں. مصطفیٰ کی معراج صرف ایک ذات اللہ رب العالمین کی ہے. خدا کا دیدار کیا، یہ حضور کی معراج ہے. اور معراج سے جو اللہ کا تحفہ ملا وہ ہے نماز. سبحان اللہ. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. جب کوئی کہیں سے آتا ہے تو کچھ تحفہ لے کے آتا ہے. رب نے تحفہ بھیجا نماز، اور 50 وقت کی نماز. موسیٰ کلیم اللہ نے چھٹے آسمان پوچھا یا رسول اللہ کی امت کو کچھ تحفہ بھی رب نے دیا ہے؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا میرا تجربہ ہے، کر نہیں پائے گی، کم کرا لیجیے. 5 کم ہوئی، پھر 5 کم کروایا. 9 بار حضور کو اللہ کے دربار میں بھیجا. بات سمجھ رہے ہو کیا؟ وہاں دیکھا خضر موسیٰ صحیفہ، اور یہاں محبوب کے جلوے میں اللہ کا جلوہ نظر آتا تھا. بار بار بھیج رہے تھے تاکہ محبوب خدا کا دیدار کرے. میں محبوب خدا کا دیدار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی. رب نے ارشاد فرمایا محبوب میرا حکم بدلہ نہیں کرتا. آپ تمہاری امت میں جو بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم جنت و دوزخ کی سیر کی. وقت رہے تو تفصیل سے بتاؤں کہ جنت میں کیا کیا دیکھا، کون کون سے گنہگاروں کو دیکھا جہنم میں، اور جنت میں کس کس عمل کی بنیاد پر جنت میں جاتے ہوئے دیکھا. انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی تو ہم بتائیں گے. ابھی بس اتنا سمجھیے، سب دیدار کرنے کے بعد اس کے لمحے میں واپس آئے. واپس آنے کے بعد سو گئے. فجر کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں بیت المقدس گیا، نبیوں کی امامت کیا، 7 آسمان پہ گیا، سدرہ گیا، عرش اعظم گیا، جنت و دوزخ کو دیکھا، لامکہ گیا، خدا کا دیدار کیا، اسی لمحے میں واپس آیا. تو جو اہل ایمان تھے برابر مان گئے، کہا حق ہے. لیکن جو کمزور ایمان والے تھے بولے اتنی جلدی کیسے گئے، کیسے آئے؟ ابو جہل تو ٹھنڈورا پیٹتے ٹوٹتے پورے مکے میں گھوم رہا تھا. ہجرت سے 3 سال پہلے یا 2 سال کسی روایت میں ہو، اس سے اعتراض نہیں ہے. ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں معراج مصطفیٰ ہوئی. اب وہ گھوم گھوم کے سب کو بتانا، دیکھو یہ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا. بیت المقدس آنے جانے میں 1 مہینہ لگتا ہے. یہ بولتے ہیں رات کے چند لمحے میں بیت المقدس، 7 آسمان، جنت و دوزخ کی سیر وغیرہ وغیرہ. حضرت ابوبکر صدیق مل گئے. کہا اے ابوبکر تم پورے مکے میں سب سے دانا بینا عقل مند ہو. ایک بات بولو، اگر کوئی یہ بولتے کہ میں 1 ہفتے میں بیت المقدس جا کے واپس آ گیا تو وہ آدمی تمہاری نظر میں کیسا ہے؟ فرمایا جھوٹا ہے وہ. ابو جہل کا کلیجہ پھولنے لگا. کہا اگر کوئی بول دے کہ 1 دن میں جا کے واپس آئے گا، اس سے بڑا جھوٹ. کہا ابو بکر تیار رہنا، پلٹنا نہ. کوئی بھی نہ کہا ہاں. کہا تمہارے صاحب کہتے ہیں رات کے چند لمحے میں بیت المقدس گیا، تمام نبیوں کی امامت کیا، 7 آسمان میں گیا. کہا میرے نبی نے کہا ہے؟ کہا ہاں ہاں. تو کہا سن ابو جہل، ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے. نبی نے تو کہا سبحان اللہ اس کی تصدیق کرتا ہے. سبحان اللہ نبی نے کہا حق ہے. بے شک سبحان. بولے تھے کوئی بھی بولے تو آپ نے کہا کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. اور اب کا جو تصدیق کرتا ہوں، کہا یہی تو کچھ سمجھ نہیں پایا دنیا والے. اور ہے مصطفیٰ اور سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں پہنچے، پورا واقعہ نقل کیا تو میرے آقا نے تمغہ عطا فرما دیا، آج سے تمہارا لقب صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے ابا کو ایک بار حضور نے ارشاد فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اللہ نے تمہیں آگ سے آزاد کر دیا. اس دن سے میرے ابا کا لقب عتیق بھی ہو گیا. اچھا اگر میں غریب نواز کا تحفہ لا کے دوں آپ کو تو سب لوگ لے لو گے؟
पूरा ना हो चूरा हो धागा ले ली है तू बता बोलो ले लोगे ना तू खाजा करीम नवाज का अगर गौस पाक का तोहफा दूं तो रसूल पाक का तोहफा दूं रब का दिया हुआ तोहफा कबूल क्यों नहीं करता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तोहफा भेजने वाला रब्बुल आलमीन लाने वाले रहमतुल लिल आलमीन अब तोहफा है नमाज सुभान अल्लाह नमाज की पाबंदी करो इंशाअल्लाह हर परेशानी का खात्मा हो जाएगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बच्चे बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ आज की रात में अपने बच्चों को ऐलान कर दो जो नमाज पढ़ेगा वही मेरा दिया हुआ कमाया हुआ खाएगा जो नहीं पढ़ेगा कसम खुदा कि मैं उसको एक दाना खाने नहीं दूंगा बीवी से कह देगा नमाज तू नहीं पढ़ेगी तो मैं पकाने वाली का इंतजाम करके लाऊंगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अगर नमाज ना पढ़े मुझसे रब्ता करो दूसरी बेहतरीन जन्नती बीवी का इंतजाम करवा दूंगा बीवी से बोलोगे नमाज पढ़ने के लिए जल्दी बोलो शादी हो गई तुम्हारी बीवी तकलीफ सुनने आई है सुन नहीं रही है ना इसीलिए इतनी बोली निकल ये पढ़ा के बोली क्या बोले पूछ रही है हजरत बोल रहे थे इसलिए ले सकते मुसलमानों खाना नमाज के दीवारों ताकत की बुनियाद पर नहीं अखलास की बुनियाद पर इस्लाम फैला है तुम भी मुसलमान बोलो इस्लाम पसंद है जल्दी बोलो 2 मिनट के अंदर खत्म कर देता पसंद है मुसलमान पसंद है मुसलमान का चेहरा पसंद है ये चाहते हो कि हम दिखे तो मुसलमान कब्र में जाए तो दिखे मुसलमान अर्श में जाए तो दिखे मुसलमान जानते हो ना तो क्या पहचाना कैसे पहचाना जाएगा मुसलमान जल्दी बोलो कौन सा दीवाना सबसे पहले खड़ा होता है दाढ़ी रखने के लिए सुभान अल्लाह सुभान तो दुनिया वालों को गुलाम मुस्तफा हो गए नारे खड़े हो तकबीर ये अफगानी मुस्तफा के साहबा के गौसो खाजा के खड़े हो जाओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बच्चा चच्चा तुम लोग भी खड़े हो जाओ सब सरदारी रखो दुनिया में सीधा रहो तो मुसलमान बनकर दुनिया से जाओ तो मुसलमान बनो सुभान अल्लाह दो कदम अल्लाह के जानिब जरा बढ़ के तो देख बल्कि रहमत खुद उठा लेगी तुझे आगोश में सुभान अल्लाह सुभान तुम्हारा गुनाह माफ हो रहा है बैठो मत सुभान अल्लाह ठीक हो सुभान रहा है नहीं माफ होगा क़यामत दिन जमालुद्दीन का दामन पकड़ लेना आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं दाढ़ी पर पाबंदी लगेगी तब रखोगे खड़े हो जाओ अरे दीवाने खड़े हो जाओ तुम भी खड़े हो जाओ जवानों सुभान शादी अल्लाह का टेंशन मत लो जो बीवी कह दे दाढ़ी वाले से शादी नहीं करोगी उससे शादी करो ही मत देखो मेरे पास टाइम नहीं है 1 मिनट के अंदर में जिसको उसको दाढ़ी रखना जल्दी खड़े हो जाओ ए बच्चा खड़ा हो जा अरे जल्दी खड़े हो जाओ सुभान अल्लाह सुभान खड़े हो जाओ सुभान अल्लाह सुभान अरे अल्लाह खड़े हो जाओ शादा का फैसान चाहते हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हज़रत मौला अली का फैसान एक टाइम बताओ 1 मिनट के अंदर में जितने भी दाढ़ी कटाने वाले सब खड़े हो जाओ अरे जल्दी बच्चा तू भी खड़ा हो जा हजरत मुजाहिद तुम्हारे अब्बा कहाँ है अरे जल्दी खड़े हो टाइम खत्म हो गया